Good morning to all. Myself Rupinder Kaur, Department of Hotel Management, RPIIT Campus, Karnal. Today my video on Safety Rules at Housekeeping Department Part 2. In this videos I had discussed the ladders, machineries and electrical equipments while you are on duty. Please keep some points in mind. Ladder can be used when cleaning area or near the ceiling or such tasks as changing lights, bulb. When selecting a ladder for a particular cleaning job, it is condition, height and footing should be inspected. Number 2, check the ladder for stability and examine the cross pieces for the sturdiness. If the ladder is broken or defective, do not use it. Rather, tag the ladder, place it out of service, and report it to the appropriate housekeeping supervisor और द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. कि जब भी आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में लैडर का यूज़ करते हैं तो आप उससे पहले उसे इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे कि जो भी आप लैडर यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर उसके जो फुट स्टेप्स हैं वो ठीक हैं, वो कंडीशन में ऐसी कंडीशन में तो नहीं है कि ब्रोकन कंडीशन तो नहीं है, डिफेक्टेड तो नहीं है कि वो उससे आपको कोई इंजरी हो जाए. अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो आप उसे अवॉइड करेंगे और उसे आउट ऑफ ऑर्डर कर देंगे, मतलब आउट ऑफ सर्विस उसे लिख देंगे उसके ऊपर. नेक्स्ट, an aluminum or metal ladder should never be used when working near on the electrical equipments. Ladder with rubber footing should be used on tile floor or in a kitchen area to prevent the slipping. In all instances, the floor should be dry and clean. The ladder must be high enough so that an attendant can stand on it and do the job without overreaching. Never stand on the top step of a ladder if the area cannot be reached while standing on the step below the top step. The ladder is too short for the job. इस पॉइंट्स के अंदर ये डिस्कस किया है कि जब भी आप लैडर पे काम करते हैं तो आपका जो फ्लोर है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए. दूसरा, जो भी आप लैडर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक कोई काम कर रहे हैं, इक्विपमेंट से कोई रिलेटेड काम है, तो आप उसके पास कभी भी जो आपकी आयरन है या मेटल है वैसी लैडर यूज़ नहीं करेंगे. लैडर शुड नॉट मस्ट बी हाई इनफ. तो जो भी लैडर की हाइट है वो आपको पता होनी चाहिए कि आपने कितनी हाइट पे काम करना है और उसके लिए कौन सी लैडर इनफ रहेगी. अगर आपको लगता है कि आपकी लैडर छोटी है, कम रह गई है, उस हाइट पर नहीं पहुंच पा रही, तो आप कभी भी उसके टॉप जो फुट है उसके ऊपर नहीं खड़े होगे, फुट स्टेप पे नहीं, टॉप स्टेप पे कभी भी नहीं खड़े होगे, क्योंकि उससे आप गिर सकते हो और कोई हैवी आपको इंजरी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप उसे अवॉइड करेंगे. नेक्स्ट, ladder should be placed so footing is at least 1/4 of the ladder length away from the wall. Never place a ladder against window or uneven surfaces. कि जब भी आप लैडर को रखेंगे, सीढ़ी को रखेंगे, तो अनइवन सरफेस नहीं होना चाहिए या आपका कोई विंडो वाला नहीं होना चाहिए कि कभी आप विंडो के आगे लैडर लगाएं और अंदर से कोई विंडो ओपन कर दे तो आप गिर सकते हैं. बिफोर क्लाइंबिंग, टेस्ट द लैडर फॉर स्टेबिलिटी. इट शुड बी वेल बैलेंस्ड एंड सिक्योर अगेंस्ट द wall and floor. Always be sure to face the ladder when climbing and have a clean and dry hands and feet. Do not hold any item or tools that may prevent the use of one or both hands. Mark the area underneath the ladder with caution sign so that the guest or employee do not underwalk the ladder. Machinery. The second point is machinery. While you handling the machinery, some points you should have to keep in mind. First, employees should be authorized and trained in the use of machinery and equipment before operating such devices. Most equipments, machineries and power tools come with instructions. कि जब भी हमारे एम्प्लॉयज़ कोई भी काम करते हैं या उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है मशीनरी और इक्विपमेंट्स के रिगार्डिंग, तो उन्हें उनके बारे में पता होना चाहिए, उन्हें सारी उसके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस पता होनी चाहिए, हमने इसे कैसे ऑपरेट करना है. Some employees may need additional training and supervised practices before operating equipments and machinery on the job by themselves. कई बार हमें उनके लिए एडिशनल ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज़ को. नेक्स्ट, मैंने
power tools and other machineries are equipped with the protective guards or shields. These safety guards should never be removed. कई बार जो हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं, मशीनरी होती है, उनके साथ सेफ गार्ड लगे होते हैं, तो हमें वो कभी भी अवॉइड नहीं करने चाहिए, उतारने नहीं चाहिए. हमें उनके साथ ही उन्हें फॉलो करना चाहिए जो भी उन्होंने सेफ्टी गार्ड्स बताए हुए हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस में. नेक्स्ट, employees may also be required to wear protective eye goggles और ग्लव्स. ऑल प्रोटेक्टिव गियर शुड बी worn पर इंस्ट्रक्शन. जो भी हमें आई ग्लव्स गोगल्स दिए हुए हैं, ग्लव्स दिए हुए हैं हैंड्स में पहनने के लिए, हमें यूज़ करने चाहिए जब जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं एज पर द मशीनरी. इक्विपमेंट एंड मशीनरी शुड नेवर बी लेफ्ट अनअटेंडेड वाइल इन यूज़. नेक्स्ट, when not in use, all tools and equipment should be turned off and stored in the proper place. Never use a piece of equipment or machinery that is not operating correctly. Contact the appropriate supervisor or the maintenance department to have it repaired as soon as possible. इसका मतलब ये है कि जब भी आपने अपने इक्विपमेंट और टूल यूज़ करने हैं तो आपने उसे प्रॉपर स्टोर करना है. ठीक है, उन्हें कोई भी ऐसा नहीं कि किसी भी पीस को आप अवॉइड करें. आपने उसे प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज करना है. मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो उसको टाइम टू टाइम उसको मेंटेनेंस आपने करवानी है. Electrical equipments. Extra care must be taken when operating electrical equipment. Even one of the most common housekeeping appliances like vacuum cleaner can be harmful or deadly if operated improperly or in unsafe conditions. An employee should never operate electrical equipment when standing in water or when hands or clothing are wet. It is also unsafe to operate electrical equipment near the flammable liquids, chemicals, vapors, sparks from the electrical equipment could start a fire. कि जब भी हमने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को काम करना है, हमारे एम्प्लॉयज़ को ये ध्यान रखना होता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कि आपने कभी भी उन्हें गीले हाथों से टच नहीं करना. अगर आपका वैक्यूम से आप काम कर रहे हैं तो आपको उसका प्रॉपर प्रोसीजर पता होना चाहिए, स्टेप्स पता होने चाहिए, वरना आपको उससे कोई इंजरी हो जाएगी, आपके लिए अनसेफ रहेगा. और कभी भी किसी भी इक्विपमेंट को हमने वेट हैंड से नहीं टच करना, ना ही उसे गीले मतलब कि कहीं पानी में यूज़ करना है. अगर ऐसा करेंगे तो हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. उसके अलावा कि आपके जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनसे कभी स्पार्क निकल सकता है और कोई फायर की भी कंडीशंस आ सकती हैं. Next, equipment wires and connections should be checked periodically. Equipment with loose connections or exposed wires should not be used. जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, अगर उनकी तारें ख़राब हो गई हैं, अगर कहीं से कटे हुए हैं, कट लगा हुआ है वायर्स के अंदर, तो हमें उसे कवर कर देना चाहिए. तो हमें मतलब टाइम टू टाइम उन्हें periodically चेक करना चाहिए. And appliances should never be unplugged by pulling or yanking the cord. This will loosen the connection between the cord and the plug and cause spark and shorts. Equipment should be unplugged by grasping the pull plug and pulling it gently away from the outlet. कि कभी भी हमें अप्लाइंसेस जो भी हैं उन्हें कभी भी बेयर हैंड से नहीं टच करना चाहिए, उनको आगे पॉइंट से नहीं पकड़ना चाहिए. क्या उससे क्या होगा, आपको कोई शॉर्ट सर्किट लग सकता है, आप मतलब कोई फायर की कंडीशन भी आ सकती है, आपको करंट भी लग सकता है एम्प्लॉयज़ को. तो प्लीज़ हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं इन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में. उसके साथ साथ जो हमने मशीनरी के बारे में बात की है, मशीनरी का भी हमें प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ ही यूज़ करना चाहिए. अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं हमारे एम्प्लॉयज़, तो हम बहुत बड़े खतरे से बच सकते हैं और बहुत बड़े खतरे से अपने होटल को भी बचा सकते हैं. Next, when using the electrical equipment, the cord should be kept out of traffic areas such as the center of the hallway or cross doorway. It is not always possible, particularly with such tasks as vacuuming corridors. In such situation, keep the cord close to the wall and post caution sign in the work area. If the appliance will be stationary and in use for a lengthy period, tap the cord of the floor and place caution sign over the tap cord. Next, extension cords are something required, particularly when the electric outlet is not located near the work areas. Extension cord should be inspected for exposed wire because you just
बिफोर यूज़ जस्ट लाइक दैन अनदर इलेक्ट्रिकल कोड। इट मीन्स कि जब भी आप वर्किंग एरिया में, आप पब्लिक एरिया में आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं तो आपको वो जो भी उनका प्लग है उसे उसके आसपास आपको साइन बोर्ड लगा देने चाहिए, उसे प्रॉपर दीवार के साथ लगा के रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कभी भी हमारे कोई गेस्ट जाएँ, उनके किसी लगेज ट्रॉली में, किसी लगेज में, या उनके हाथ या पैर या कोई छोटा बच्चा जा रहा हो गेस्ट का तो वो उसे टच करे। तो इसलिए आपको साइन ज़रूर देने हैं जब भी आप दिन में ये काम करते हैं या पब्लिक एरिया में आप ये काम करते हैं। तो यू शुड हैव टू फॉलो दीज ऑल रूल्स फॉर योर सेफ्टी एंड द गेस्ट सेफ्टी। थैंक यू। प्लीज़ like and subscribe our channel.